اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت نوح ضلع سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ میوات ہریانہ کے نوح، جہاں پر بھگوا آتنکوادیوں نے ماحول کو خراب کیا تھا، وہیں سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آخر گزشتہ کل وشو ہندو پریشد کی یاترا وہاں پر نہیں نکلی۔ 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے 51 لوگوں کو مندر لے جا کر جل ابھیشیک کرایا۔ پورے علاقے میں سناٹا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ وشو ہندو پریشد نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یاترا نکال کر رہیں گے، ہمیں کسی کے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب حکومت اپنا ڈنڈا صحیح انداز میں استعمال کرے اور واقعتاً حکومت امن و امان بنانے کے لیے کام کرے تو پھر سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آخر ہریانہ میوات کی پولیس نے نوح ضلع میں وشو ہندو پریشد کو یاترا نہیں نکالنے دی، 200 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور جو مذہبی رسومات تھی اس کو 51 لوگوں کو مندر لے جا کر جل ابھیشیک کرایا۔ پورے علاقے میں گزشتہ کل سناٹا رہا، کیونکہ وی ایچ پی کے آتنکی اعلان سے پورے علاقے میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اسکولیں بند تھی، بینک بند تھے، بازار بند تھے، بہت سارا ماحول بگڑا ہوا تھا، لیکن خیر ہریانہ میں حکومت نے مضبوط طریقے سے کام کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ داعی اسلام، مبلغ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ انہیں پھلت جانے کی اجازت دے دی گئی، ضمانت کی شرطوں میں تبدیلی کی گئی۔ بھائی علیم صدیقی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت کی شرطوں پر تبدیلی کی درخواست پر پیر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے مولانا کی ضمانت کی شرطوں میں تبدیلی کی، حالانکہ اتر پردیش حکومت نے ضمانت رد کرنے کی درخواست کی تھی۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ نے مولانا صدیقی کو ضمانت دی تھی۔ اس دوران عدالت نے کہا تھا کہ انہیں دہلی این سی آر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہو، لیکن اب سپریم کورٹ نے اس میں راحت دے دی ہے۔ ملک میں نفرتوں کا گندا ماحول پھل پھول رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں جہاں اس سے پہلے بہت سارے دلت بھائیوں سے نفرتوں کے واقعات آئے تھے، یہ ایک اور واقعہ بڑا سامنے آیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک دلت نوجوان کا پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ بھیڑ نے
बहन को भी पीटा और मां को भी बरहना करके नंगा करके घुमाया। मध्य प्रदेश में भी वही सरकार है जो सबका साथ सबके विकास का बात करती है, जो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की हिफाजत की बात करती है। वही बीजेपी सरकार में ये घटिया और नीच किस्म के वाकयात हो रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ताजा मामला सागर जिला में पेश आया। यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक दलित को पीट पीट कर मार दिया और जालिमों ने उसकी मां को नंगा करके इलाके में घुमाया। बताया जा रहा है कि मरने वाले दलित की बहन और दलित खातून की बेटी ने 2019 के एक मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज भीड़ ने इनके घर पर हमला बोल दिया। भीड़ ने मरने वाले दलित की बहन को पीटा और जब उसकी मां ने उससे हमला आवरों से बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी बेलिबास कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले के 9 कलीदी मुल्ज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यानी मणिपुर का वाकया फिर यूं समझिए कि मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की ही हुकूमत है वहां मणिपुर जैसा वाकया फिर दोहराया गया। नाज़रीन, एक बड़ा मामला आपके सामने था, चारा घोटाला। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बरसों से उसका केस चल रहा था। अभी उस केस की सुनवाई जब मुकम्मल हुई तो फैसला सामने आया कि चारा घोटाले मामले में 35 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया और 53 यानी 53 मुल्ज़िमीन को सजाएं सुनाई गई और 36 मुल्ज़िमीन की सजा पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने जिन 35 लोगों को बरी किया है उनकी पूरी लिस्ट है, जिनको सजाएं सुनाई है उनकी भी लिस्ट है, लेकिन चारा घोटाला मुकदमा, चारा घोटाला मामला जो बहुत पुराना मामला है, इस मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है। नाज़रीन, एक मशहूर फेमस जर्नलिस्ट, एक मशहूर सहाफ़ी है मोहम्मद ज़ुबैर। आखिर फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के मुतअस्सिरा कमसिन तालिब इल्म की शनाख्त जाहिर करने पर योगी की पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर पर FIR दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पीर को ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। ये FIR मुजफ्फरनगर के स्कूल में थप्पड़ मारे गए नाबालिग की शनाख्त सोशल मीडिया पर जाहिर करने की वजह से दर्ज की गई है। ज़ुबैर ने थप्पड़ मारने के वाक़े की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अकाउंट पर शेयर की थी। मुंबई जमीयत उलमा महाराष्ट्र के हेड ऑफिस से हमारे नुमाइंदे मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब जो अभी फ़िलहाल जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी महरूसीन के मुकदमात की पैरवी करती रहेगी। एक्चुअल में आप जानते हैं कि जमीयत उलमा के एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने ये काम अंजाम दिया था और जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के वो चेयरमैन थे और बड़े बेबाक दबंग और यूँ समझिए कि बेबाकी के अंदाज में केस को डील करते थे और हर जालिम का और धमकी देने वाले का मुकाबला भी करते थे। अलहाज गुलजार आज़मी मरहूम, जिनका 20 अगस्त को इंतकाल हुआ, तो अब खबरें आ रही है कि मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने यह कहा है कि कोई ये ना सोचे कि ये नेक काम रुक जाएगा, नेक काम चलता रहेगा और अल्लाह चलाता रहेगा। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी बाकायदा महरूसीन के मुकदमात की पैरवी करती रहेगी, यानी मजलूमों बेकसूरों के केस जमीयत उलमा जैसा लड़ती चली आ रही थी वैसे ही काम करती रहेगी। नाज़रीन, वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके से आ रही है। ये मामला श्रीरामपुर ताल्लुक़े के हरी गांव का बताया जा रहा है कि अहमदनगर में 4 नौजवानों को दरख्तों से उल्टा लटका कर पीटा गया। क्या बात पर? बकरी और कबूतर चुराने का इल्जाम है। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 फरार बताए जा रहे हैं। उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। 4 नौजवानों को 6 लोगों ने लाठियों से बुरी तरह पीटा। इन लोगों पर एक बकरी और कुछ कबूतर चुराने का इल्जाम था। पुलिस ने 26 अगस्त को एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, 5 अभी तक फरार हैं। यह मामला श्रीरामपुर ताल्लुक़े के हरी गांव का बताया जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई,
पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को 6 लोगों ने गांव के 4 लोगों को उनके घर से निकाला। उसके बाद उनके कपड़े उतार कर दरख्त से उन्हें उल्टा लटकाया, फिर तमाम मुल्जिमान ने उन्हें लाठियों से मारा। वाक़े के बाद जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी नाज़रीन, सियासी हलचल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 26 पार्टियों का एक महागठबंधन बना है, जो मुल्क से नफरत फैलाने वाली पार्टी, दंगे फसाद कराने वाली पार्टी, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली पार्टी, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवादों में उलझाने वाली पार्टी है, यानी बीजेपी। इस बीजेपी को मुल्क से भगाने के लिए 26 पार्टियों का एक महागठबंधन, एक इत्तेहाद बना है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। तो खैर, अब खबरें आ रही है कि मुंबई में उसकी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नानाजी पटोले, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की जो मीटिंग होगी, वहां से बीजेपी चले जाओ का नारा लगेगा। जैसे उस जमाने में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, तो ऐसे ही बीजेपी चले जाओ का नारा इंडिया महागठबंधन लगाएगी। अजीत पवार विकास के लिए नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अजीत दादा पवार जो एनसीपी से फिर बाकायदा शिंदे के सपोर्ट में पहुंचे हैं, बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि अजीत पवार विकास के लिए वहां नहीं गए, बल्कि ईडी की धमकी की वजह से बीजेपी के साथ गए हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, ज्ञान वापी मस्जिद मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद से मुताल्लिक 5 दरखास्तों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आना था, लेकिन फैसला आने से पहले ही समाअत करने वाले जज जस्टिस प्रकाश का इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबादला हो गया, जिसकी वजह से अब इस केस से मुताल्लिक तमाम दरखास्तों को चीफ जस्टिस को मुंतकिल कर दिया गया है, और चीफ जस्टिस खुद इस मामले की समाअत करने का फैसला करेंगे। अब इस केस की आइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। फैसला सुनाने से पहले जज का तबादला दरअसल 32 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिली अदालत में केस को बरकरार रखने के लिए दरखास्तें दायर की गई थी। मुकदमे में किए गए दावे के मुताबिक ज्ञान वापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को मुनहदिम करके मस्जिद तामीर करवाई थी। दरखास्त में इस जगह को हिंदुओं के हवाले करने और पूजा करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। खैर, ज्ञान वापी मस्जिद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब जज के फैसला सुनाने से पहले जज का ट्रांसफर हो गया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खबर है। बताया जा रहा है कि खाने में कीड़ा निकलने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने जोरदार एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि हफ्ते में 2 बार मुसलसल ऐसे वाक़े पेश आए हैं, जिसकी वजह से तलबा ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और एहतजाज किया, और खाना बेहतर बनाने और सफाई का ख्याल रखने का डिमांड किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता एक हफ्ते में खाने में कीड़े निकलने का मुसलसल दूसरा मामला सामने आया है। कुछ रोज़ पहले JNU जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड नंबर 8 में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े निकले थे, जिस पर तीमारदारों ने हंगामा किया था, वीडियो भी वायरल की थी। अब उसके बाद में ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी खाने में कीड़ा निकलने का वाकया हफ्ते में 2 बार सामने आया है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने जबरदस्त आंदोलन किया।